बनो जो है वो ये उतारता है, हम भी उतारता है, वो भी उतारता है। सब आप अकेले ही वाले साहब नहीं आए? वो अम्स्टरडम गया है, दो चार यहाँ दावत है। खालू पैर पहुंचा बोले कि असरफ ना ही मिला आदमी तो किसी चाहिए है तो बोले कि फोन कर Muri sobat yang muskutin soja di kanil mustake. Naspai ada. Nani ko ano? इन्हों के खिलाफ कोई नहीं कोई कार्य ये सब खिलाफ तारीख दो किस्म की होती है ना, एक होती है कोई मनज़्ज़म तारीख जिसका बाकायदा कोई प्लान होता है, उसके प्रोग्राम होता है, जो असली तौर पर जो किताबें यहाँ तक से किताबें उनके रब में कोई अपना लेते की शायद करें अच्छी लोग तो इसके लिए यहाँ पर बड़ा आज 3 सितंबर 1983 को दिनहार में मोहम्मद रमज़ान बकरी नौशाई के यहाँ महफिल कादरिया नौशैया का एक ख़ुसूसी प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले आपके सामने साहबजादा सैयद मोहम्मद मुनीर हुसैन शाह नौशाई तलावत कुरान मजीद करेंगे और उसके बाद साहबजादा सैयद मोहम्मद अशरफ शाह फिरदौसी नौशाई आप नौशापुर शरीफ जिला पाकिस्तान बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियाए नात पेश करेंगे। नात खानी के बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में औलिया अल्लाह के फ़ज़ाइल व मोहम्मद का है उनका बयान होगा। सैयद मोहम्मद अशरफ शाह फिरदौसी की लिखी हुई नात उनकी ज़बानी आपने अब फ़ज़ाइल औलिया अल्लाह के मौजू पर चंद मारूज़ात पेश खिदमत हैं। लेकिन पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये महफिल ज़िक्र जो है इसका आगाज़ होने से कबल हम सब मिलकर चंद मिनट जिक्र कलमा पाक करें ताकि हमारी ज़बानें जो हैं वो कलमा पाक के ज़िक्र से हलावत हासिल करें, हमारे दिल जो हैं वो ज़िक्र पाक के नूर से मुनव्वर हो सके। सब दोस्त मिलकर एक ही आवाज़ से कलमा पाक करें।
لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا بعدا بين الماء والطين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلسلہ داران کشتو سور وردو نقش بند فیض یابن الدرے عالی نشان قادری. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ آج کی یہ مقدس محفل جو ہے یہ حضور محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اور مار محرم جلال شاہد بزم وصال گنجینہ رموزات الہیہ مخزن فیوزات لامتناہیہ امام سلسلہ نوشہیہ مجدد اعظم حضرت سید نوشہ گنج بخش قادری قدس سرہ کی یاد کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے. لیکن اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے اور جس کام میں اللہ کا نام نہیں دیا جاتا وہ ابتر ہوتا ہے, وہ بیکار ہوتا ہے, وہ فضول ہوتا ہے, اس میں کوئی خیر و برکت نہیں. اس لیے اس محفل کا آغاز جو ہے حمد الہی سے کیا جا رہا ہے اور ہم اس قادر مطلق کی جس نے انسان کو خلت تکریم سے نوازا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنی آدم کو مکرم کیا, میں نے بنی آدم کو عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, میں نے آدم کو خلت تکریم بخشی. وہ ہزاروں صفتیں رب کریم کی جس نے بنی نوع انسان کو پوری کائنات سے منتخب کر کے شرف تکریم بخشا, عزت بخشی. ملائکہ پر اسے عزت دی, جنات پر اسے عزت دی اور ہزارہا جو اس کی مخلوقات ہے ان سب سے انسان کو افضل قرار دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے انسان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے, احسن تقویم میں پیدا کیا ہے. انسان کے جسم کا کوئی حصہ بیکار نہیں بنایا. آنکھیں نصب کی تو اعلیٰ مقام پر, کان نصب کیے تو ایک خاص مقام پر, دانت اسے عطا کیے, بینائی اسے عطا کی اور اسے علم و عقل کی دولت سے نوازا اور سب سے بہتر یہ شرف بخشا کہ اس کے دل میں ایسی ایک قسم کی استطاعت پیدا کی, ایسی طاقت پیدا کی کہ وہ نور عرفان جو ہے, عرفان الہی جو ہے, اس سے منور ہو سکتا ہے, روشن ہو سکتا ہے. لاکھوں حمد اس حی قیوم کی جو اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے. نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کی صفتوں میں کوئی شریک ہے, نہ اس کا کوئی جسم ہے, نہ اس کی کوئی جیت ہے, اس کی کوئی طرف بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ خدا تعالی آسمان کی طرف ہے
یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زمین کی طرف ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مشرق میں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مغرب میں ہے، ایسا اشارہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شمال میں رہتا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنوب میں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس کی کوئی جیت نہیں، اس کی کوئی درد نہیں۔ تو جس طرح اس کی کوئی جیت نہیں ہے، بالکل اسی طرح اس کا کوئی خاص مقام نہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ رہتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے متعلق ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، لا مثل لا، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، لا شریک لا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کروڑوں حمد اس حی قیوم کی جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل۔ جو شخص اس کی ذات میں کسی کو شریک بنائے یا اس کی صفات میں کسی کو داخل کرے، شریک سمجھے، اس کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور اس کا یہ فعل جو ہے اسے شرک کہا جاتا ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کروڑوں حمد ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات کی، جس نے لفظ کن سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی اور اعلان کر دیا کہ اگر میں یہ اپنا معبود پیدا نہ کرتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں اپنے معبود محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ گویا یہ شمس و قمر، یہ بر و بحر، یہ جن و انس، یہ بروج و ثواقب، یہ کائنات کی تمام اشیاء جو ہیں، ان سب کی تخلیق کا باعث ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں حمد رب ذوالجلال والاکرام کی کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، کن تو کنزن مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کا نہ اول ہے نہ آخر، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کن تو کنزن مخفیا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے یہ بات پسند آئی، میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تب میں نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ گویا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ہے رب کریم کے دیکھنے کا، اسی لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھے۔ من رآنی فقد رآل حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کی جیت نہیں ہے، اور جس کی جیت نہ ہو اس کی طرف دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کے دیکھنے کا آئینہ ہے، آپ کو دیکھنے سے ہی ذات باری تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر ہوئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو خدائے ذوالجلال کے وجود کی شہادت دوسرے لوگوں نے جو دی ہے وہ شہادت سمائی ہے، سنی ہوئی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
जो ये ऐलान किया है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, ये शहादत चश्मदीद है, आंखों से देखिए। ये फर्क है दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब अंबिया को मनसब नबुव्वत जो तफीज हुआ है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से, आपके वास्ता से उन्हें नबुव्वत मिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के वास्ता से नबुव्वत नहीं मिली। यही वजह है कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मनसब नबुव्वत दिया गया, जब मैं नबी बनाया गया, उस वक्त ना आदम था, ना नूह थे, ना खलीलुल्लाह थे, ना कलीमुल्लाह का वजूद था, और ना रूहुल्लाह थे। कुन तो नबी यम आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था, अभी आदम बने नहीं। ये बात जो आम बात जाहिल मुल्ला अपनी तकरीरों में बयान करते रहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिलती, इसकी कोई हकीकत नहीं। नबी यौम अज़ल से नबी होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, अभी 1-2 रोज के ही हैं, तो आप लोगों को कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इंजील दी गई है, मैं तौरात का हाफिज हूं, खुदा ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो अगर ये बात दुरुस्त होती कि 40 साल की उम्र में आदमी को मनसब नबूवत मिलता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बचपन में 1-2 दिन के, ये बात कुरान करीम की, 1-2 दिन की उम्र में वो बिल्कुल ये ऐलान न करते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, कभी ये न कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया हुआ है। ये उनका जिक्र जो है, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये किसी आम किताब में नहीं है, बल्कि ये बात कुरान करीम में मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते ही ये ऐलान करते हैं कि मैं नबी हूं, तो उन लोगों की ये बात जो है, इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आती, जो ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र में मनसब नबुव्वत मिलता है। अलबत्ता बाद अंबिया ने, खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया है, लोगों को दावत इलल हक दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप नबी उस वक्त बने हैं, आप यौम अज़ल से नबी थे, और सब नबी यौम अज़ल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजूर के वास्ता से मनसब नबुव्वत पर फाइज थे। जब जब उनका वक्त आया, जिस वक्त भी उनका वक्त आया, उस वक्त उन्हें दुनिया में मबूस कर दिया, दुनिया में भेज दिया। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुरान कहता है, कब जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया, यानी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा कि तुम में पैदा हुआ, बल्कि ये इरशाद किया कि कब जाकुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह के पास से आया। कौन? कब जाकुम मिनल्लाहि नूर, जा कहते हैं आने को, तो आता वो है जो किसी जगह मौजूद हो। ये बात इस कौल की तस्दीक करती है कि सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही नबी थे। कब जाकुम मिनल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से आए, और आता वो है जो पहले कहीं मौजूद हो। करोड़ों सिफ्त उस खालिके कायनात की जिसने मखलूकात की हदायत के लिए सिलसिला नबुव्वत को जारी किया, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात गिरामी जो है, उस पर आकर इस सिलसिला को खत्म कर और ऐलान कर दिया कि ये मेरे जो पैगंबर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इनके बाद क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा, किसी को मनसब नबुव्वत नहीं दिया जाएगा। जो भी नबुव्वत का दावा करेगा,
खा वो साहिब शरीयत नबी होने का करे, खा वो गैर शरी नबी होने का करे, खा वो ये दावा करे कि मुझ पर किताब नाज़िल हुई है, खा ये दावा करे कि मुझ पर किताब नाज़िल नहीं हुई है। मैं नबी का उम्मती हूँ, लेकिन दूसरी हसीयत से मैं नबी हूँ। वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, और दीन इस्लाम के साथ उसका कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सयकून फी उम्मती दज्जालून कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबियुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअद। मेरी उम्मत में कुछ लोग जिनकी तादाद 30 होगी, वो पैदा होंगे, वो झूठे होंगे, दज्जाल होंगे, तादाद उनकी 30 होगी। सब उनमें से ये गुमान करेंगे कि हम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन याद रखो अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खत्मुल मुरसलीन हूं, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। करोड़ों हमद रब करीम की, जिसने मखलूकात पर ये एहसान किया कि उन्हें हदायत का रास्ता दिखाने के लिए अंबिया का सिलसिला जो है उसका आगाज किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब अंबिया जो थे, उनकी बुनियादी बात एक ही थी कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, ना इंसानों से, ना जिन्नों से, ना मलाइका से, ना पत्थरों से। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत के लायक सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब और बस। ना मूसा इबादत के लायक हैं, ना ईसा इबादत के लायक हैं, ना वद स्वा और यऊक इबादत के लायक हैं, ना अज़्ज़ा और लात मनात इबादत के लायक हैं, ना कश उतार इबादत के लायक है, ना मच्छ उतार इबादत के लायक है, ना वैष्णो देव इबादत के लायक है, ना महादेव इबादत के लायक है, और ना कृष्ण महाराज इबादत के लायक हैं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह इबादत के लायक सिर्फ एक और एक जात है जिसे अल्लाह कहते हैं। वो खुदाई इबादत के लायक है जिसके मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया, अल्लाह अहद, वो अपनी तमाम सिफात में यकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद क़यामत तक लोगों को जो हदायत देना मकसूद था, उसके लिए रब करीम ने एक और सिलसिला जारी किया। इस्लाम में उसे कहते हैं वलियों का सिलसिला, वलायत का सिलसिला। अंबिया का जमाना खत्म हो चुका, अब हमेशा हमेशा के लिए जो जमाना है ये मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क़यामत तक का जमाना ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ में बैठकर पूरी कायनात को देख रहे। आप फरमाते हैं कि उम्मत की सब नेकी बदियां जो हैं ये सब मेरे पेश की जाती हैं। तो उन लोगों को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, ये बात मलहूज रखनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा ये नामा अमल सईदे कायनात की बारगाह में भी पेश हो रहा है। और कल क़यामत के दिन अगर हमसे ये पूछा गया कि तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत का दम भरते थे, उनकी दोस्ती का दम भरते थे, उनके उम्मती होने के दावेदार थे, लेकिन
तुम्हारा नामा अमाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। तो क्या जवाब दोगे? सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद, उनका सर नेज़े पर चढ़ाकर काफिला जा रहा था तो रास्ता में एक रात आ गई। वहां सर उन्होंने दीवारों के साथ खड़े कर दिए और खुद जमीन पर बैठ के अचानक दीवार से एक तख्ती बरामद हुई। दीवार से एक तख्ती बरामद हुई, उस पर ये 3 शेर लिखे हुए थे। पहला शेर था अतरजु उम्मतन कतलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमिल हिसाबी। ऐ कौम, क़यामत के दिन तुम ये उम्मीद रखोगे कि जिस शख्स का तुमने आज ये सर नेज़े पर चढ़ा रखा है, इसका नाना पाक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अतरजु उम्मतन कतलत हुसैनन, है लोगों, क्या तुम ये गुमान रखते हो? अतरजु उम्मतन कतलत हुसैनन, तुम्हें ये उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन इनके नाना पाक जिनको तुमने तय किया है तुम्हारी हिफाजत करेंगे। दूसरा शेर था कि बेतरती माजा तकूलूना इज़ कालन नबी लकुम, तुम उस वक्त क्या कहोगे जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे ये पूछा मा फालतुम वांतुम खैरुल उम्मी, ये तुमने क्या किया है खैर उम्मतों का। अल्लाह ने तो तुम्हें कुंतुम खैर उम्मतिन का खिताब दिया था कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे जब तुमसे ये पूछा गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्तिफसार किया कि ऐ खैर उम्मत, ये तुमने खैर उम्मत होने का हक अदा किया है। बेतरती बाबी बाद मोतकदी मिनहुम उसारा व कत्ल सुतकू बेरमी, मेरी औलाद को तुमने तय किया है, तुम्हारे लिए मेरी शिफायत में कोई हिस्सा नहीं है। तो ऐसा न हो कि कल सईद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम पेश होंगे तो हमें ये शर्मिंदगी न उठानी पड़े कि हमारे जो दावे हैं वो इत्बाए रसूल के हैं, लेकिन हमारा नामा अमल जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स अगर वहां साबित हुआ तो फिर समझ लें कि हमारा कहीं ठिकाना ना होगा। तो सईदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान का सिलसिला जो है, नबूवत का सिलसिला बंद हो गया है, नबूवत खत्म हो गई है, लेकिन फैजान नबूवत क़यामत तक जाए। अब कोई नबी तो नहीं होगा, लेकिन वली ऐसे होंगे जिनके कमालात बिल्कुल नबियों से मिलते जुलते होंगे, उन्हें कमालात नबूवत हासिल होंगे, नबियों की तरह उनसे करामतें सरज़द होंगी, लेकिन वो नबी नहीं होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम, हजूर के उम्मती होंगे। करामत कहते हैं उस खैर के आदत फेल को जो ज़ाहिरी सबब के अलावा मारज़ाए शहूद में आए। अगर ज़माना नबूवत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले नबी जो है उनसे जो ज़ाहिर हुआ है उसे तो कहते हैं मौजज़ा, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद यानी सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ ले जाने के बाद जिस शख्स से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करता, हजूर की शरीयत पर अमल पैरा हो, उससे जो बात खिरके आदत सरज़द आम असूलों के खिलाफ, खिरके आदत कहते हैं आम असूलों के खिलाफ, मसलन ये मेरी यहां से उंगली टूट जाती, इसका आदत के मुताबिक कानून के मुताबिक ये तरीका है कि यहाँ मैं एंटीसेप्टिक अद्विया का इस्तेमाल करूँ, फिर इसके साथ फटियाँ रख कर सही तरीका से इसे पट्टी कर एक खास मुद्दत के बाद इसे खोल, फिर इसे बाकायदा मालिश करता रहूँ। ये है आदत, आम कानून। और खिरके आदत
आम कानून के खिलाफ जो बात है वो ऐसी है, बुखारी शरीफ में आता है, एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास किया करता था। हर वक्त वो हजूर के खिलाफ मंसूबे बांधा करता था। एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आशिक, सईदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फिदाई जोश में आ गया। उसने तलवार ली, एक साथी साथ लिया, उसके मकान पर पहुंचे। वो दूसरी मंजिल पर था। जब वहां पहुंचे, साथी को नीचे खड़ा कर दिया और खुद सीढ़ियों पर चढ़कर उसकी चारपाई तक पहुंचा, उसके बेड तक पहुंचा और उसे कत्ल कर दिया, तय कर दिया। और कहा यह सजा है इस बात की कि तुम सईदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवासात कर। वापसी पर जल्दी से जब वो उतरा तो सीढ़ी से उसका पांव फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। ये हड्डी जो है ये टूट गई। दूसरे साथी ने उसे उठाया, बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह, आपके एक दुश्मन को कत्ल करने के बाद ये जब वापस आ रहा था तो पड़सांग से इसका पांव जो है वो फिसल गया और इसकी ये टांग की हड्डी टूट गई। हजूर मुस्कुराए, फरमाया उब सुत रिजलक, अपनी टांग जो है इसे जरा सीधी करो। वो सहाबी कहते हैं फबसत्तु रिजली, वो टांग मैंने सीधी की। फिर वो कहते हैं कि खुदा की कसम वो उसी तरह होगी जिस तरह पहले थी। ये है खिलाफे कानून, इसे कहते हैं खिरके आदत। नबी से अगर सरजद हो तो इसे कहते हैं मौजज़ा, और नबी के बाद नबी के मानने वाले से सरजद हो तो उसे कहते हैं करामत। या इस तरह समझ लीजिए, एक लड़ाई में एक सहाबी की आंख में तीर लग गया, उसकी आंख की पुतली बाहर निकल आई। ये जो गोल काला दाग होता है ना आंख की पुतली, ये बाहर निकल आई। उसने वो हथेली पर रख ली, आंख की पुतली हथेली पर रखकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे तीर लगा है जिसकी बना पर ये मेरी आंख बेकार हो गई है। सईदे कायनात ने उसकी वो पुतली उठाकर आंख में सबत कर दी, लब मुबारक लगाई। वो सहाबी कहते हैं कि खुदा की कसम इस आंख से मुझे दूसरी आंख से ज्यादा नजर आता। तो ये बात है, इसे कहते हैं बतौर खिरके आदत, बतौर ख्वार। इसे कहते हैं खिरके आदत के तौर पर ये वाकया रूनुमा हुआ। यह एक सहाबी की लड़ाई में तलवार टूट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगा कि हुजूर, मुझे कहीं से तलवार ले दीजिए, मेरी तलवार टूट गई है। तो आपने फरमाया ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहने लगे हाथ में लकड़ी की छड़ी है। फरमाया इधर जरा मुझे दे दो। सईदे कायनात ने उस पर हाथ फेरा तो वो लकड़ी तलवार बन गई। हदीस का वाकया, वो लकड़ी तलवार बन गई। ये लकड़ी का तलवार बन जाना जो था, ये था बतौर खिरके आदत। तो ये बात अगर किसी वली से जाहिर हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स हजूर के मानने वाला उससे जाहिर हो तो उसे कहते हैं करामत। आम कानून के इलावा पहले नबी जो थे उनमें ये कमाल था, उनमें ये खूबी थी कि किसी के हाथ में लोहा जो है वो मोम बन जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो लोहे को आग में नहीं डाला करते थे, बल्कि हाथ से ही मरोड़ कर लोहे की चीजें बना लिया करते। हाथ उनके ऐसे बाबरकत थे कि लोहा उनमें पानी पानी हो जाता था। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में यह कुदरत थी कि जब वो लोगों के सामने करते थे
تو وہ سورج کی طرح چمکنے شروع کر دیا۔ ان کی لاٹھی میں یہ برکت تھی کہ جب وہ اپنے ہاتھ سے اسے پھینکتے تھے تو وہ ایک عظیم سانپ بن جایا کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ برکت تھی کہ جس پر دستے شفقت پھیرتے تھے اگر وہ اندھا ہوتا تو اسے بینائی حاصل ہو جاتی، اور اگر وہ مجذوم ہوتا، اسے کوڑ کی بیماری ہوتی تو اسے وہ شفا حاصل کر لیتا۔ اگر مردے کی طرف نظر شفقت کرتے تھے وہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ یہ ان انبیاء کے کمالات تھے جنہیں معجزات کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب نبوت جو ہے یہ ختم تھا، اس لیے ولایت یعنی ولیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، آپ کی توجہ سے سب صحابہ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، لیکن حیدر کرار امیر المومنین علی المرتضیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چوگا پہنا کر کہا کہ یہ فرقہ ولایت ہے، میں تمہیں ولایت کا جبہ پہناتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں میں سے خواجہ حسن بصری کو یہ جبہ پہنایا۔ خواجہ حسن بصری سے بالترتیب سلسلہ بسلسلہ یہ جبہ غوث پاک شاہ بغداد سید عبد القادر جیلانی کے پاس تھا، اور سید عبد القادر جیلانی سے واسطہ در واسطہ یہ جبہ سلسلہ نوشیہ کے امام حضرت نوشہ گنج بخش قادری کے ہاتھ پہنچا۔ یہ جبہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے بطور تبرک، آج تک ہماری تعویل میں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبوت ختم ہو گئی، ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتخاب کیا کہ سب ولیوں سے سید عبد القادر جیلانی بغداد والے کو افضل قرار دے۔ نبی تو سب نبی تھے لیکن محمد مصطفیٰ کو افضل قرار دے۔ ولی سب ولی ہیں لیکن غوث پاک کو ولیوں کا سردار بنا دیا، اور کہہ دیا زبان باطن سے عاطف غیبی نے یہ آواز دی کہ اے محبوب سبحانی غوث پاک اعلان کر دو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو مردے کوئی لوگ لاتے تھے تو ان کی طرف وہ توجہ کرتے تھے، وہ زندہ ہوتے تھے۔ آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عیسائی اور ایک مسلمان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ مسلمان کہنے لگا جی یہ عیسائی ہے، کہتا ہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت حاصل تھی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، اور تمہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا یہ مردہ زندہ کرنا جو ہے یہ تو عام قسم کی بات ہے، حضور کے تو خاتم بھی مردہ زندہ کر سکتے ہیں، آپ مجھے کوئی قبر دکھاؤ میں مردہ زندہ کر دیتا ہوں۔ اس عیسائی نے ایک بوسیدہ قبر دکھائی جو شیس علیہ السلام کے وقت۔ غوث پاک اس قبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس کی موت جب واقع ہوئی تھی تو یہ اس وقت گا رہا تھا اور اپنی کنگ جو ہے وہ بجا رہا تھا، اسی حالت میں اسے دفن کیا گیا ہے، تو جس حالت میں یہ مرا ہے اسی طریقہ سے یہ زندہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو اور اچھا ہے۔ غوث پاک نے اس کی طرف توجہ کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ قبر پھٹ گئی اور مردہ گاتا ہوا باہر نکلا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں شیس علیہ السلام کا امتی ہوں، انہوں نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ محمد رسول اللہ کی امت میں ایک شخص
सैयद अब्दुल कादिर जिलानी होगा जो वलियों का सरदार होगा और उससे नबियों की तरह करामतें जाहिर होंगी, वो इंदल्लाह बड़ा मकबूल होगा। तो मैंने उनकी खिदमत में इल्तमास की कि हजूर मैं उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने कहा अब तो तुम्हारी मौत का वक़्त मुतय्यन है, मैं दुआ करता हूँ बारगाह इलाहिया में कि जब उनका ज़माना आए तो वो तुझे जिंदा करें और तू उनकी ज़ियारत। इस किस्म के अमल को कहते हैं करामत। या हजरत नौशागंज बख्श को ले लीजिए, हजरत नौशागंज बख्श मस्जिद का काम करवा रहे थे। ये जो लोग लकड़ी का काम करते हैं हमारे यहाँ उधर पाकिस्तान में उन्हें तरखान कहते हैं। प्लम्बर जो लकड़ी का काम करते हैं ना, मकान में जो लकड़ी की मसलन इस किस्म की खिड़कियां बनाते हैं या कोई काम करते हैं, उसे हमारे मुल्क में तरखान कहते हैं। उसने कोई बेतदाली की, उस तरखान ने कोई लकड़ी जो है वो हजूर की इजाजत के बगैर कोई उसमें कत बरीद की। आपसे किसी ने शिकायत की, आपने फरमाया कि उसकी मौत इसी आरा से होगी जिससे उसने लकड़ी काटी। अल्लाह की हिकमत, जब काम करीबुल इख्तिताम हुआ तो यक लक आरा और लकड़ी छूट गई। वो बहुत बड़ी गेली थी, आरा उसके सर पर लगा और दो टुकड़े हो गया उसके। वो मर गया, शोर मच गया। नौशा पीर की खिदमत में लोगों ने जाकर इल्तमास की कि हजूर वो तरखान जो है वो मर गया। अब लोग कहेंगे कि नौशा पीर ने मजदूरी देने के लिए उसे बदवा दे दी, उसका हिसाब किताब जो है वो खत्म नहीं किया। हजूर लिल्लाह दुआ फरमाइए, आप खामोशी की हालत में उन आदमियों के साथ चल पड़े। देखा तो पूरा खून जो है जमीन पर बिखरा हुआ है, उसका सर जो है वो दो टुकड़े हो चुका है। आपने अपनी चादर उतारकर उसके ऊपर डाल दी और उसे कहा कि उठ, फिर किसी वक्त मर जाना, आज तू हमारे लिए हमारी बदनामी का बाइस न बन। आज से कई सौ साल पहले उस जमाने का एक अजीम पंजाबी शायर था अल्लामा अशरफ मंचरी। वो इस वाक़े को लिखते हैं पंजाबी शेरों में। वो कहते हैं कि अहमद नाम करे मैमारी, नाम उसका अहमद था, वो मैमारी करता था, यानी वो लकड़ी का काम करता था। अहमद नाम करे मैमारी, सिर उसदे विच लगी आरी। अहमद नाम करे मैमारी, सिर उसदे विच लगी आरी। उसके सर में वारी लग गई और फिथा मगज ने जारी रहा। उसका जो दिमाग था वो टुकड़े टुकड़े हो गए। नौशा हाथ लाया उस पाई, हज़रत नौशा पीर ने उसे हाथ लगाया और कहा कि सानू ना बदनाम कराई, फिर करे तू मर जाई, सोहन करी है यारी दा, फिर कभी मर जाना। अब उठ खड़ा हुआ, क्या वो मुंह करके अल्लाह अल्लाह उठ खलोता चंगा भला, मुद्दत जीव्या नाल तसल्ला कुम बेजन सितारी दा। वो उसी वक्त उठकर खड़ा हो गया, जिंदा हो गया दोबारा, और हजूर की कदमोसी करके आपके सिलसिला में दाखिल। उसकी औलाद आज तक वहां मौजूद है। यही नहीं, आपका एक मरीज फौत हो गया, वो आपके गाय चराया करता था। आपको किसी ने बताया ना, उसे दफन कर दिया। जब आपको पता चला तो आप उसके आगे वापसी पर आप उसकी कब्र पर फातिहा कहने के लिए गए, तो आपने उसे आवाज देकर बुलाया कि कब्र से बाहर आ जाओ, हमारी गायें जो है अभी तक बंधी पड़ी हैं। अगर पंजाबी का वादी शायर लिखता है, मौलवी हबीबुल्लाह नौमानी, मुसन्नफ तफसीर नौमानी, अपनी किताब में इस वाक़े को लिखता है कि औलियाए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनमें ये कुव्वत है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। ये वाक़या बयान करते हुए वो नौशा पीर की मिसाल पेश करता है। वो पूरा ये वाक़या लिखता है और लिखता है कि हजरत नौशा गए कब्र तक, मार आवाज बुलाया, सुन आवाजा नौशा वाला, पासो बाहर आया। आप उसकी कब्र पर गए, आपने आवाज दी, कब्र उसकी फट गई और वो बाहर निकल आया और जिंदा।
मुद्दतुल उम्र हजूर का वो काम कर। इसी तरह खुशाब जिला डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की एक अंधी औरत हजरत नौशा पीर की खिदमत में आई। उसके खामन ने इल्तमास की कि हजूर मैं इलाज मुआवजा करके मायूस हो चुका हूँ, लिल्लाह मुझ पर करम फरमाई कीजिए। आपने फरमाया मेरी तरफ देखो। जब उस औरत ने आंखें उठाकर देखा तो उसकी दोनों आंखें रोशन हो गई। वही मंजरी शायद लिखते हैं कि एक औरत जहनी आई कि अब एक मेरे वाल माई देखदे हुई रचनाई होया फजल बहारी का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजूर की उम्मत में अल्लाह जल्ला शानहू ने कमालात वलायत जो हैं इनका सिलसिला शुरू किया जो क़यामत तक जारी रहे। अब जो नमाज का वक्त हो चुका है इसलिए मैं अपनी बात को इसी बात पर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कादरिया नशरिया की दूसरी नशिस्त का आगाज होता है। पहली नशिस्त में आपको बताया गया था कि अल्लाह जल्ला शानहू ने रुश्तो हदायत के लिए अम्बिया का जो सिलसिला शुरू किया था उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़त्म कर दिया और ऐलान कर दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये खातमुन नबी हैं। हजूर के बाद भी इला यौमिल क़ियामा हजूर की उम्मत से ऐसे लोगों को अल्लाह जल्ला शानहू ने शरफ बख्शा जिनके हिस्सा में ये सआदत थी, जिन्होंने रुश्द व हदायत के चश्मे जारी किए और एक आलम उनसे फैज़याब हुआ। जहाँ तक तबलीग इस्लाम का तल्लुक है वो तो तकरीबन दुनिया के तमाम लोग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इस्लाम जो है ये तलवार से नहीं फैला बल्कि ये औलिया-उल्लाह की दुआओं से, उनकी तवज्जो से और उनकी तबलीग से फैला। बिलखसूस हिंदो पाक में तबलीग इस्लाम के सिलसिला में जो काम सूफिया ने किया है, तारीख हशायत इस्लाम में उनकी इस तबलीगी मसाई से एक ज़र्रीन बाब का इजाफा होता है। शुरू में यानी 5वीं और 6वीं सदी हिजरी में अर्ज़े हिंदो पाक में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा तबलीग की उनका नाम था सैयद अब्दुल अली। ये हजरत नौशा पीर के मुर्से आला हैं। हजरत नौशा पीर उन्हीं की औलाद से और हजूर गौस पाक के वो खालिद थे। हजरत गौस पाक ने सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने उन्हें हिंदुस्तान का कुतुब बनाकर भेजा था। अब खर्च करे। अब सहाबा ने ये हुक्म सुनना था तो सब अपने अपने घरों को चले गए, तैयारियां करने लगे कि हम ज्यादा से ज्यादा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अपना माल पेश करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है ये हमेशा मुझसे माली कुर्बानी में बढ़ जाते हैं। इस दफा मैं ज्यादा माली इमदाद दूंगा। चुनांचे उन्होंने घर आकर घर का निसफ हिस्सा बेच दिया। जितने मकान थे उनमें से आधे बेच दिए, जितने बर्तन थे आधे बेच दिए। अलगर घर के 2 हिस्से किए, घर के माल के। एक हिस्सा घर में रखा और एक हिस्सा जो है वो लेकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए चल पड़े। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यारे गार अफज़लुस सहाबा ने जब ये बात सुनी तो वो घर आए, कहने लगे कि आज सईदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है कि इस्लाम पर बड़ा सख्त किस्म का वक्त है, अब बहुत ज्यादा कुर्बानी करना जरूरी है। उन्होंने घर आकर ऐसा किया कि घर के तमाम एहसासा बेच दिया, घर में कोई चीज बाकी न रहने दी।
सब बर्तन बेच दिए, सब अशिया जो बिकने वाली थी बेच दी, मकानात बेच दिए। आपके पास सिर्फ वो कपड़े रह गए जो बदन पर पहने हुए थे। उन्होंने अपने बीवी को कहा कि तेरे कपड़े जो हैं ये कुछ अच्छे हैं, इनके कुछ पैसे मिल सकते हैं, तुम ये मेरे कपड़े पहन लो और मैं इस बोरी से गुजारा कर सकता हूँ। खुद बोरी लपेट ली, तमाम एहसासा बेचकर उसी शक्ल में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते। हजूर की खिदमत में तमाम सहाबा अपना अपना माल पेश करते हैं। सईदे कायनात उनसे पूछते हैं कि तुम घर क्या छोड़ आए हो। वह शख्स जो कुछ घर एहसासा छोड़ आया था उसके मुतल्लिक अर्ज करता है, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक की बारी आई। आपने पूछा कि ऐ सिद्दीक आप क्या घर छोड़ आए हैं? फरमाया परवाना को शमा और बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ था वो पेशे खिदमत कर दिया। तो हजरत सैयद अब्दुल अली ने जब अपने मानने वालों को, अपने मरीदों को, उन लोगों को जो उनके हाथ पर इस्लाम लाए थे, इस बात की तरफ बुलाया कि मोमिन का ये शेवा है कि मिम्मा रज़क़ना हुम युनफिकून, जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया है, मोमिन की ये तारीफ है कि वो अल्लाह के रास्ता में खर्च करने से नहीं झिझकते। कहाँ खर्च करते हैं? दीनी कामों पर। कभी किसी बुजुर्ग का उर्स मनाते हैं, कभी इस्लामी तबलीगी जलसा मुनक्किद करते हैं, कभी महफिल मीलाद कायम करते हैं, कभी मेहमानों के खुर्दो नोश का इंतजाम करते हैं, कभी अपने शेख की बारगाह में हाजिरी देते हैं, कभी इस्लामी लिटरेचर जो है उसे शाया करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ये मोमिन की तारीफ। लेकिन ये भी याद रखिए, इंसान का इम्तिहान सिर्फ दो चीजों से ही होता है, माल की कुर्बानी से और जान की कुर्बानी से। ये तो आपको इल्म ही होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा कि आए औज बिनुनक से लड़ना है, जब उन्होंने देखा कि वो लंबे लंबे कद के जवान, बड़े तनुमंद, खूंखार उनकी आंखें, तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला, ऐ मूसा आप और आपका खुदा जाकर इनसे लड़े। इन्ना हाउना कायदून, हम तो यहाँ बैठ कर देखें, अगर तुम्हें फतह हासिल हो गई तो हम तुम्हारे साथ, और अगर शिकस्त हुई तो हम मरने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सईदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तबलीग का ये असर है कि सहाबा की तारीख पढ़िए तो आपको पता चलता है कि उन लोगों ने दीन पर किस तरह अपनी जानों को और अपने मालों को कुर्बान किया, परवाह तक रखी, लेकिन दीन पर कोई आंच ना आने दी। उन्हें न किसी तलवार पर भरोसा था, न किसी हथियार पर भरोसा था, न माल पर भरोसा था, न अपनी जो मर्दी पर भरोसा था, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था। फकत एक उन्हें भरोसा था, उन्हें बस एक काली कमली वाले पर। तो सैयद अब्दुल अली ने जब अपने मुतवस्सिलीन को पुकारा कि आए, आज इस्लाम और कुफ्र की जंग है, आए आज इलाही कलमतुल्लाह के लिए हमें अपनी जान आफरीन के रास्ता पर कुर्बान करनी है। आए इस मुल्क में जहां हमारा न कोई साथी है न रिश्तेदारी है, अगर रिश्तेदारी है तो मैं लिल्लाह उन लोगों के साथ जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। सैयद अब्दुल अली ने अपने मानने वालों को ललकारा कि आओ, ये घड़ी मैशर की है, तू अरसाए मैशर में है,
پیش کر اپنا عمل کوئی اگر دفتر میں. اب صرف زبانی تبلیغ سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ دشمن اپنا لشکر لے کر میدان حرب میں آ چکا ہے، میدان جنگ میں آ چکا ہے. بس وہ جعل مسلمان جن کے دلوں میں نیا نیا بلبلہ تھا، جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، کسی کو 1 دن ہوا تھا، کسی کو 10 دن ہوئے تھے، کسی کو مہینہ گزرا تھا، کسی کو 4 مہینے گزرے تھے، سر بکف میدان میں آ گئے اور ایک جم غفیر کے ساتھ انہوں نے ٹکر لینے میں کوئی بات محسوس نہیں، کوئی خطرہ محسوس نہیں، کیونکہ مسلمان کی یہ شان ہے، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تمہارے دلوں میں اگر ایمان ہے تو دنیا کی کوئی قوت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، لیکن اگر خود تمہاری ایمانی حالت کمزور ہے تو یہ دوسری بات. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہمیشہ سر بلند رہو گے. شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہو. نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ کلچ جس کے پاس ایک عظیم لشکر تھا، اس زمانہ میں جو ہتھیار راج تھے وہ سب کے سب اسے حاصل تھے، وہ اس لڑائی میں مارا گیا، اسے شکست ہو گئی. اس کا کچھ لشکر بھاگ گیا اور کچھ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا، زنات توڑ کر کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ اس کے کنبہ کے لوگ بھی مسلمان ہیں. اسی طرح ان کے بیٹے حضرت سید زمان علی محسن، جب ان کا عہد آیا تو انہوں نے جہاں ان کے والد نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ ختم کیا تھا اور واپس بغداد تشریف لے گئے تھے، وہاں سے اس کا آغاز کر دیا. کرانا پہاڑی سرگودا میں، ڈسٹرکٹ سرگودا میں ایک بہت بڑی مشہور ہے، وہاں ایک رانی حکمران تھی، اس کا نام تھا رانی بھر. اس کو جب پتہ چلا کہ سید عبدالعلی کا بیٹا اس کے علاقہ میں تبلیغ اسلام کر رہا ہے اور بتوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس نے اپنے لشکر کو للکارا کہ اٹھو، مرد میدان بنو اور اس اجنبی آدمی کا کلا کم کر. یہ عراق کا باشندہ ہے، ہمارے ملک میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ بنفس نفیس وہ رانی خود لشکر کی کمان کر رہی تھی، لیکن جب میدان جنگ میں گئی تو اس نے کسی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ سید زمان علی ہیں کون، کہاں ہیں؟ ایک آدمی نے اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے گھوڑی پر سوار ہے، عربی لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ سید عبدالعلی کے فرزند رشید ہیں، ان کا اس میں گرامی سید زمان علی کا محسن ہے. اس نے جب ان کی طرف نظر اٹھائی تو اس پر سکتہ چھا گیا، وہ غش کھا کر گھوڑے سے گر پڑی، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، کہنے لگی کہ یہ شخص جس مذہب کا پجاری ہے وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی. لڑائی نہ ہوئی، وہ دیکھتے ہی کہنے لگی کہ لوگوں، میں نے تو سید زمان علی شاہ محسن کے خدا کو مان لیا ہے، اس کے رسول کو مان لیا ہے، اس کا دین قبول کر لیا ہے، تم جانا اور تمہارا کام جانا. اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مسلمان. انہی سید زمان علی شاہ محسن کے پوتے حضرت سید نوشہ گنج بخش قادری
जो नौशहरा पारना, बाद में जो आपकी वजह से कुतुब नौशहरा मशहूर हुआ, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक मशहूर गांव है, आपने मुर्शिद के हुक्म से वहां सुकूनत गुजरी थी, वहां से आपने दावत लाख दुनिया को दी, मशरक वालों को ललकारा के आओ इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मगरब वालों को ललकारा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आम लोगों को बताया कि अगरचे तुम मुसलमान हो लेकिन दीन पर सख्ती के साथ अमल पैरा हो जाओ, ताकि तुम खुसूसी रहमतों और खुसूसी बरकतों से बराबर हो सको। इलाही कलमतुल्लाह के लिए जब आपने ऐलान फरमाया तो लोग जौक दर जौक आपकी उस मसनद पाक पर हाजिर होने लगे। आपके उस गांव में जाने लगे जिनमें हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, और मुसलमानों में से आलम थे, बड़े बड़े फादिल थे, शायर थे, अदीब थे, आमद उन्नास भी मौजूद थे। जो शख्स हजरत नौशागंज बख्श की बारगाह में हाजिर होता, वह अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हजूर से फैज़ हासिल करता। आम आदमी जाता तो उसके बातनी लताज पैदार हो जाते, आलम बातन की अशिया उस पर मुंकशिफ हो जाती। उलमा जाते तो उनके ज़हन से वो इल्मी तकब्बर जो था वो मिट जाता और सही उन्हें हकीकत का इल्म हो जाता। इल्म की किस्में हैं, एक होता है इल्मुल यकीन, ऐसा इल्म हासिल होना जो यकीन की हद तक हो, और दूसरे को कहते हैं ऐनुल यकीन। तीसरा इल्म जो है उसे कहते हैं हकुल यकीन। ये यकीन के मुख्तलिफ मर्तबे हैं, इल्म के भी मुख्तलिफ मर्तबे हैं। जाहिर आलम जो है, मुल्ला जो है, उसका इल्म कागजों तक महदूद है, और औलिया अल्लाह का जो इल्म है वो लौह महफूज पर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जो इल्म होता है वो अल्लाह की तरफ से इल्का होता है, और अल्लाह की तरफ से अगर किसी को इल्म दिया जाए तो आप जानते हैं कि उसकी क्या शान है, उसका क्या रुतबा है। खुद कभी तर बाशिदा खमरे कुहन, खासा खमरे के बाशिद मिल्लतुन। अल्लाह ताला अपने एक बंदे का जिक्र कुरान करीम में फरमाते हैं कि वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, मैंने एक अपने बंदे को जो मेरा खास बंदा था अपनी तरफ से इल्म दिया था। उसे इल्म लदुन्नी हासिल था, वो किसी उस्ताद से उसने नहीं सीखा था, बारगाह खुदाबंदी से उसे अनायत किया गया था। उसका नतीजा ये था कि वो आने वाले जो वाकयात हैं उन्हें देख लेते थे, दीवारों के नीचे जो खजाने दफन होते थे उन्हें देख लेते थे, आइंदा के हालात जो है वो उनके सामने आ जाते थे। हज़रत नौशागंज बख्श से मुतल्लिक भी ये बात किताबों में आती है कि आप जब पढ़ने के लिए मदरसा में गए तो रात को ख्वाब में दो फरिश्ते आपको मिले। उन्होंने अपनी अंगुश्तें आपके मुंह में डाली और कहा कि हमने तुझे इल्म लदुन्नी तो तौहीद कर दिया। सुबह जब आप बेदार हुए तो तमाम उलूम आपको अज़बत थे, सब इल्म किसी आदमी से नहीं पढ़ा। जिस शख्स को गंज बख्श का रुतबा मिलने वाला था, गंज बख्श कहते हैं खजाना बख्शने वाले, और नौशा कहते हैं लाड़े को। बरात होती है ना, बरात, उसमें जो दूल्हा होता है उसे फारसी में नौशा कहते हैं। गोया ये औलिया अल्लाह सब जो हैं ये कुल बराती, जितने वलीउल्लाह हैं ये बराती हैं, और नौशा गंज बख्श उनमें इस तरह है जिस तरह बरात में दूल्हा होता है कि ये सब मजमा जो है ये दूल्हा की खातिर जमा होता है। ये खिताब किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है,
بعض بزرگوں کے جو خطاب ہیں وہ آدمیوں کے عطا کرتا ہے یا کسی واقعے کے ساتھ منسوب ہیں. مثلا ہمارے ڈسٹرکٹ لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. ان کا یہ لقب جو ہے گنج بخش، یہ ایک ولی نے انہیں دیا تھا، معین الدین حسن سجزی نے. انہوں نے ان کی بارگاہ میں ایک چلا کشی کی، چلا کاٹا. چلا کاٹنے کے بعد وہ دروازہ پر لکھ کے کہ آپ گنج بخش، یعنی آپ خزانہ بخشنے والے، مجھے آپ سے فیض حاصل ہوا ہے. حضرت فرید الدین شکر گنج جو ہیں، ان کا یہ لقب گنج شکر جو ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی والدہ مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی، شوگر رکھتی تھی کہ تم نماز پڑھتے ہو اور اس کی برکت سے یہ شوگر جو ہے یہ مصلی کے نیچے سے نکلتی ہے. ایک دن انہیں یاد نہ رہا تو حسب عادت جب انہوں نے ہاتھ مارا تو وہاں سے شوگر نکلا ہے، حالانکہ رکھی نہیں گئی تھی. اسی روز سے آپ گنج شکر کے نام سے مشہور. لیکن نوشہ گنج بخش کا جو خطاب ہے یہ انہیں خدا تعالیٰ نے تفویض کیا تھا. غیب سے آواز آئی تھی کہ تو نوشہ ہے، تو گنج بخش. اور جب یہ خطاب ملا تھا، آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ خشک درخت کے نیچے آپ بیٹھ جائیں. آپ جب وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ درخت سرسبز ہو گیا اور اس کے پتوں سے نوشہ نوشہ کی آواز آ رہی. نسیم ز لطف الہی مزید زہر برگش آواز نوشہ شلی. اللہ کی ہوا، رحمت کی ہوا کے جھونکے اللہ نے جھولے اور اس درخت کے پتے پتے سے نوشہ نوشہ کا آواز آنا شروع. حضرت نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب الہ کلمت اللہ کے لیے، دعوت الحق کے لیے کمر باندھی تو اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے. کتابیں لکھیں، تقریریں فرمائیں، لوگوں پر توجہ ڈالی. ان سے جو کرامات کا صدور ہوا انہیں دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ آپ کے کلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور کے بعد سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے. کچھ ایسے لوگ تھے جو حضور کو دیکھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگے. ایک بہت بڑا مولوی، قرآن کریم کا حافظ، محمد طاہر اس کا نام تھا، وہ اس زمانہ کے ایک مشہور بزرگ حضرت میاں میر لاہوری کے خلیفہ ملا شاہ قمری تھا. لیکن تھا مولوی. 10-12 سال کے بعد وہ ان کا منکر ہو گیا. پھر چند دوسرے بزرگوں کی خدمت میں گیا. بدخشان کے وہ رہنے والا تھا، لیکن اسے کچھ حاصل نہ ہوا. آخر اس قدر وہ بد دل ہوا کہ وہ ہندو ہو گیا. ہندو جوگیوں کے ساتھ مل کر ہندو طریقہ کے مطابق اس نے جوگ حاصل کرنا شروع کیا. ماتھے پر تلک لگا لیا، سوا مال لی اور سورج کی پرستش میں مصروف ہو گیا. بتوں کی پوجا کرنے لگا. وہ قافلہ مارا مختلف علاقوں میں پھرا کرتا تھا. آج یہاں رات رہا، کل دوسرے شہر میں رہا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز وہ قافلہ جس میں حافظ محمد طاہر بھی موجود تھا، وہ حضرت نوشہ گنج بخش کی بارگاہ عالیہ میں آئے. نوشہ پیر کا یہ دستور تھا کہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق دیا کرتے تھے. ہندوؤں کے لیے ہمارے ملک میں ہندو مسلمانوں کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، اب بھی نہیں کھاتے، بلکہ جس کھانے کو مسلمانوں کا ہاتھ لگ جائے اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پلیت ہو گیا، درشت ہو گیا، وہ اسے بالکل استعمال نہیں کرتے. اس لیے جہاں ہندوؤں کی آمد و رفت ہوتی تھی ان کے کھانے پینے کا علیحدہ انتظام ہوتا تھا. انہیں خشک لنگر دیا جاتا تھا، انہیں خشک آٹا دیا جاتا تھا، وہ اپنی روٹی وغیرہ خود پکاتے تھے. وہ ہندوؤں کا قافلہ جس میں حافظ محمد طاہر بھی شریک تھے،
बारगाह नौशाह आलम हजरत नौशागंज बख्श की बारगाह आलिया में पहुंचे, आपने सब हिंदुओं को आटा तकसीम किया। क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लंगर से आटा खत्म हो गया। हाफिज मोहम्मद ताहिर की जब बारी आई तो उस वक्त लंगर में आटा मौजूद नहीं था। हर शख्स को उसके हिस्सा के मुताबिक आटा, दाल, लून, नमक, मिर्च वगैरह सब देते थे। वो नाउमीद होकर वापस लौटा और दिल में उसने ख्याल किया कि मैं अजीब बदकिस्मत इंसान हूं कि मुसलमानों के घर से दरवेशी तो बजाय खुद मुझे तो आटा तक भी हासिल नहीं हो सका, आटा भी मेरे नसीब में नहीं है। ये बात उसने दिल में की। अब नौशाह पीर वलीउल्लाह थे, वली कामिल थे, कुतुबों के कुतुब थे और बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसूसी फैजान के ज़ेरे असर आपने उसकी तरफ मुतवज्जो होकर उसे आवाज दी कि हाफिज ताहिर इधर आओ, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है। उसने इधर उधर देखा कि कौन सा ऐसा आदमी वाकिफ है जिसने मुझे बुलाया है। आपने दूसरी बार आवाज दिया। हाफिज ताहिर परेशान हो गया कि मैं तो सुल्तान हिंदू बन चुका हूं, कोई शख्स मुझे इस इलाका में जानता तक नहीं है कि मेरा नाम हाफिज ताहिर है और मैं हाफिज कुरान करीम का। इन्हें कैसा पता चल गया। तीसरी बार आपने जब देखा, उसने आंखें उठाकर हजूर के चेहरा मुबारक की तरफ देखा तो अश कर उठा, जन्नात तोड़कर कलमा पाक पढ़कर मुसलमान हो गया और आपकी बैत हो गई। वही हाफिज बहुत बड़े वलीउल्लाह हुए हैं, हाफिज मोहम्मद ताहिर कश्मीरी, दुनिया वलायत के आफ्ताब हुए। इसी तरह हजरत नौशागंज बख्श की खिदमत में और भी कई हिंदुओं के काफिले आते रहे, लेकिन जो आया, जब आपने उन पर नजर करम की तो दौलते ईमान से मालामाल होकर आम आदमी जब हजूर की बारगाह आलिया में उन्होंने हाजिरी दी तो हजूर की नजर करम से मनसबे वलायत पर फायद हो। एक एक शख्सियत ऐसी पाकिस्तान में मौजूद है कि आज 300 साल के बाद भी उनके मज़ारों पर, उनके कब्रों पर लोगों का जगमटा रहता है और इतनी भीड़ होती है कि आदमी आसानी से सलाम नहीं कर सकता। हजरत नौशाह पीर के एक मरीद हैं जिनका नाम है हजरत शाह अब्दुल रहमान पाक, पीड़ी शरीफ डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में उनका मज़ार है। उनके मज़ार पर सालाना हाजिरी के वक्त लाखों अफराद हाजिर होते हैं और मशरिक से लेकर मगरब तक लोग उनका नाम जानते हैं। हर खिता में उनके नाम से लोग मुतारफ हैं। तो ये कमाल था नौशाह आलम हजरत सैयद नौशागंज बख्श कादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने कहा है कि सिलसिला दारा ने चिश्तो सोरवर्दो नक्शबंद, ये चिश्ती, ये सोरवर्दी, ये नक्शबंदी सब अच्छे हैं, सब बाकमाल हैं। जिस तरह आप बाग में जाए तो वहां सब फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, लेकिन नरगिस का जो फूल होता है वो कई हजार साल के बाद होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावत है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस उम्मत में अल्लाह ताला 100 साल के बाद एक ऐसा वली पैदा करेगा जो मुजद्दिद के लक़ब से मशहूर होगा 100 साल के बाद, और वो दीन की तजदीद करेगा। चुनांचे हजूर के इस इरशाद के मुताबिक हर 100 साल के बाद उम्मत मुहम्मदिया में ऐसे लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की तजदीद की और वो मुजद्दीन के साथ में शामिल है। तो एक मुजद्दिद होता है जो 100 साल के बाद होता है, एक होता है जो 1000 साल के बाद होता है। जिस तरह 100 और 1000 में फर्क होता है, इस तरह जो सदी का मुजद्दिद होता है उसमें और 1000 सदी का जो मुजद्दिद होता है उसमें फर्क होता है। हजरत नौशाह पीर जो है
یہ مجدد عالم تھے، 1000 صدی کے بعد مجدد ہوئے، اس لیے آپ کو مجدد اعظم بڑا مجدد کہا جاتا ہے۔ مجدد اور بھی ہیں، جس طرح پھول اور بھی ہیں، لیکن گل نرگس جو ہے اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ اسی طرح کائنات میں بے شمار اشیاء ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کا وصف جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کے بعد سید عبد القادر جیلانی کے بعد آپ کے سلسلہ کے حامل، دین اسلام کے مبلغ، ولیوں کے سردار حضرت سید نوشہ گنج بخش قادری ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم نوشائی کہلاتے ہیں۔ نوشائی کو مطلب نہیں ہے، نوشائی کا مطلب ہے کہ نوشہ پیر کے واسطہ سے غوث پاک کو ماننے والے۔ یہ غوث پاک کی سب بڑی لائن ہے۔ باقی اس طرح سمجھیے جس طرح ایک نہر سے چھوٹے چھوٹے نالے نکالے جاتے ہیں، یہ غوث پاک سید عبد القادر جیلانی قادری کی مین لائن ہے۔ آپ کے تو اس علاقہ میں ایک رواج پڑ چکا ہے کہ لوگ مولویوں کے مرید ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بالکل رواج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پیروں کا طبقہ علیحدہ ہے اور مولوی حضرات کا کام ہے نمازیں پڑھانا اور واز کرنا، مسجد کی امامت کرنا۔ لیکن ہم نے تو ادھر آ کر دیکھا، انگلینڈ میں، جرمنی میں اور فرانس میں، ادھر ہالینڈ میں دیکھا ہے کہ جو مولوی جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لوگ اس کی بات کر رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بات کر رہا ہے۔ ہم تو یہ فلسفہ نہیں سمجھتے، نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس کا کام وہی ساجد۔ مشاہین طریقت اسلام کے پھیلانے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک روح کو اجاگر کرنے والے اور ایک جسم کو اجاگر کرنے والے، ایک اسلام کے ظاہری احکام بتانے والے اور ایک اسلام کے باطنی احکام بتانے والے۔ جو ظاہری احکام بتانے والے ہیں انہیں مولوی کہتے ہیں، جو باطنی احکام کے عالم ہوتے ہیں انہیں پیر کہتے ہیں۔ جو روح کے معالج ہیں وہ پیر ہیں، اور جو جسم کے معالج ہیں وہ حکیم ہیں۔ تو بہر صورت حضرت نوشہ گنج بخش قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادری سلسلہ کے عظیم المرتبہ بزرگ تھے۔ کئی ہزار ولی نے آپ سے فیض اٹھایا۔ عام لوگ بجائے خود بادشاہ شاہ جہاں کا ایک واقعہ، اس نے کئی بار قلعہ قندھار پر حملہ کیا لیکن فتح نہ ہو سکا۔ بالآخر درویشوں کی طرف اس نے رجوع کی، ولیوں کی طرف۔ اس زمانہ کے کئی ولیوں کی خدمت میں اس نے اپنے قاصد بھیجے کہ دعا کرے قلعہ قندھار فتح ہو جائے۔ انہوں نے کہا دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ فتح چاہتے ہیں تو دریائے چناب کے کنارے نوشہ پیر کے پاس چلے جائیں۔ نواب سعد اللہ خان کو اس نے حضور کی خدمت میں بھیجا کہ حضور دعا کریں قندھار فتح ہو جائے۔ آپ اس وقت پیشی کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ آپ نے پانی کے 3 چھینٹے قندھار کی طرف پھینکے اور کہا جاؤ آج قندھار فتح ہو۔ نواب سعد اللہ خان وزیر اعظم چنیوٹی جو بہت بڑا علامہ، اس نے یہ تاریخ نوٹ کر لی، بادشاہ کو جا کر خوشخبری دے دی۔ جب قندھار سے قاصد شاہی محل میں پہنچا، کچھ مدت کے بعد، کیونکہ اس وقت پیدل راستے تھے، پیدل چلنا ہوتا تھا، کچھ عرصہ کے بعد جب پہنچا تو اس نے بشارت دی کہ قلعہ قندھار فتح ہو۔ پوچھا کب فتح ہوا؟ جب تاریخ ملائی اور وقت ملایا تو وہ وہی وقت تھا جب آپ نے پانی کے چھینٹے لگائے تھے۔ قاصد نے بتایا کہ اس روز فلاں وقت کے مطابق قلعہ کی دیواریں 3 جگہ سے شک ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی اور ہمارا لشکر اس میں داخل ہو گیا۔ حضرت نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ فیضیاب ہیں، جو لوگ حضور کے سلسلہ میں بیعت ہیں، انہیں قادری نوشائی کہا جاتا ہے۔ یہ نوشائی کوئی فرقہ نہیں ہے، نوشائی اس نسبت سے ہے کہ پہچانے جائیں لوگ کہ یہ کون سے قادری ہیں۔ جس طرح یہ سورینامی مسلمان ہیں تو سورینامی کوئی فرقہ نہیں ہے، محض پہچان کے لیے کہ یہ سورینامی مسلمان ہیں، یہ پاکستانی مسلمان ہیں، یہ انڈین مسلمان ہیں،
और ये फ्रेंच मुसलमान है। तो ये फ्रेंच इंडियन वगैरह ये कोई सिलसिला नहीं है, ये असल में पहचानने के लिए अब नाम रखे हुए। तो असल में नौशाही हजरात कादरी, इनमें एक और खूबी भी है, वो ये इनके लिबास का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो अंबिया की इत्बा में, नबियों की इत्बा के लिए कोई ना कोई अपना निशान रखते हैं। हमारे सिलसिला में दो निशान रखे जाते हैं। एक ये जर्द रंग की टोपी, ये इसलिए रखी जाती है कि ये पैगंबरों का लिबास है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नाज़िल होंगे तो उन पर दो जर्द रंग की चादरें होंगी। तमाम हदीसें उठाकर देखिए। और मुअत्ता इमाम मालिक में लिखा है कि एक सहाबी रिवायत करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गया तो देखा कि आप ज़ाफ़रान से अपने कपड़े रंग रहे। ज़ाफ़रान आप समझते हैं इस रंग को होता है। तारीख़ उल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे का खुतबा जब देने के लिए आया करते थे तो जर्द रंग के कपड़े पहनते थे। एक इसलिए हमारे सिलसिला में खा कोई अमीर हो या गरीब, पीर हो या मरीर, वो अपनी टोपी जरूर निशान। हम अपनी इबादत के वक्त इसे इस्तेमाल करते हैं, रियाजत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, विरद और रात के वक्त इसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी महफिलों में इस्तेमाल करते हैं, महफिल इशाले साहब में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सुन्नते अंबिया। जो लोग आपको बहकाएं कि ये खिलाफ सुन्नत लिबास है, दरअसल उनको सुन्नत का इल्म नहीं है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें नहीं पढ़ी, वो महज आपको वर्गलाना चाहते हैं। इसी तरह दूसरा जो हमारे लिबास का ऊन का एक कपड़ा होता है, उसे हमारे इलाका में पूरा कहते हैं और अरबी में उसे मुजम्मल कहते हैं और उर्दू में उसे कहते हैं कम्बली। ये आप कहते हैं ना कम्बली वाला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चूंकि वो उनका लिबास रखा था, इसलिए हमारे खानदान में भी हमारे उसके मौका पर लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो पूरा अपने गले में लटकाया होता है, कमली वाले आकर की सुन्नत के बेटे। सिलसिला नौशाही जो है ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक है। ये गौसे पाक शाह बगदाद का सिलसिला है, ये हैदर कर्रार का सिलसिला है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज से नहीं जारी। देखो आपको तो तकरीबन बात साथियों का इल्म है, यहाँ डच में तुम्हारे किताब छपी हुई है और उसमें हमारे सिलसिला का जिक्र है, आप तो डच जानते भी नहीं। वो किसी दूसरे ने लिखी है, कोई इंडोनेशियन था, कोई फ्रेंच था, उन लोगों ने लिखी, इंग्लिश में जहाँ किताबें। ये कोई आज से नया सिलसिला नहीं, ये 1400 साल से राज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज है, क़यामत तक बाकी रहे। हजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने उसका पंजाबी में तर्जुमा लिखा है कि हो ना बेदा मीरा आंखें चढ़ के लै गए सारे, मेरा बैंक गरूब ना उसी सदा देसी चमकारे। लोगों के सूरज चढ़कर गरूब हो चुके हैं, लेकिन मेरा सूरज हमेशा चमकता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, नारे गौसिया, या गौसिया, फखरे नौशाही जिंदाबाद। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो गौसे पाक के मुकद्दस सिलसिला में दाखिल है, क्योंकि इससे बढ़कर दुनिया में कोई सिलसिला तरीकत नहीं है। सब अच्छे हैं, लेकिन ये गौसे पाक का सिलसिला जो है, सब किताबें दुनिया में अच्छी हैं, लेकिन कुरान के मुकाबले में कोई किताब नहीं। और भी अंबिया आते रहे, लेकिन सैयद रसूलुल्लाह मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शान है वो किसी दूसरे का नहीं। तो मैं अब अपनी बात को खत्म करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे, औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता करे, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम चलने की तौफीक अता करे, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती, साहिब खाना और हम सब की तरफ से ये नजराना अकीदत अपने हबीब पाक साहिब औलाद अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में मकबूल और मंजूर फरमाना। इलाहुल आलमीन हमारा ये हदिया अकीदत और ये सब कलाम और दुआम का सवाब जो है, ये शहंशाह
हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम निहायत अदब के साथ पेश करते हैं और इसे कबूलियत का दर्जा अता फरमाएं। अल्लाह ये नजराना अकीदत जो है ये तमाम सहाबा इकराम, तमाम ताबीन, तमाम तबा ताबीन, तमाम शाहीन भगवान बिलखसूस महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाहबाज नबहानी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनशाह बगदाद की बारगाह आलिया में इलाहुल आलमीन हमारा ये अतिया अकीदत इमाम सिलसिला मशाइयात सैयद नौशाद बख्श कादरी मुजद्दिद आलम की बारगाह में मकबूल मंजूर। इलाहुल आलमीन इस मुक़द्दस महफिल के सदक़े हमारी दीनी व दुनियावी हाजतें जायज़ जो है इलाहुल आलमीन बीमारों को शिफा बख्श, नादारों को तवंगर फरमा, कर्ज़दारों को कर्ज़ माफ़। इलाहुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रख, औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमा। ए अल्लाह हमें औलिया अल्लाह की इश्क, औलिया अल्लाह का इश्क और मोहब्बत अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क अता फरमा, तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हर मुसलमान को अपने प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह अपने हबीब पाक के वतन की ज़ियारत से हम सब को मुशर्रफ फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि जअल मुक़ीम अस्सलाति व